A very good evening. A very good evening to all from Music Veranda. Myself Shantana. And today we are Yes, going to Shantanu. start. Today we are going to start with a song which every woman wants to be like. Here it goes. Wow. आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे बोलो देखा है कभी तुमने मुझे हुए हाँ आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे थैंक यू over to Aarti. Wow, Shantanu. Wonderful. Thank you. Thank you. Wow, that was And it's beautiful. for all the women out there in the world. Yes. Be happy and celebrate yourself. That's great, Shantana. Thank you so much. Hello, everyone. A very good evening to all. I'm Shivani from Music Veranda from Pune, and today we are here for the beautiful celebration of International Women's Day on our Music Veranda. Music Veranda, veranda of music, veranda of connections, veranda of friendship, veranda of masti, and veranda of so many beautiful magical things. So, without this celebration, the veranda won't be complete, definitely. And I can see such beautiful, lovely ladies in front of me. All are looking gorgeous, beautiful. A small kala tika from my side to everyone. And thank you so much for coming here. And today we are celebrating International Women's Day on our music veranda. She is a believer, she is a doer, she is an achiever, she is a woman, and she is you. Yes, yes, let me remind you once again, we are the one who is the change. We are the one who will be bringing the change. The willingness to listen, the patience to understand, the strength to support, the heart to care and just be there. Then this is the beauty of a lady. Happy Women's Day to everybody from Music Veranda. Thank you so much. Over to you, Aarti ji. Wonderful, Shantanu. Wonderful. Unmute yourself, Aarti. My best wishes to everyone. We gathered again here for love, peace, hope, and faith. So we are not endeavoring to chase goals. We are not endeavoring to chase career. We are not endeavoring to chase material happiness. But we are here to find innate joy, the absolute joy within us, and that just lies in being ourselves, just being ourselves, and being what we are. So I'm just going to sing a song just to being ourselves and reinforcing the power of now, the power of today. चले चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता हम उनके पास जाते थे मगर आहिस्ता आहिस्ता चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता अभी तारों को देखो चांद की मस्ती के को समझो अभी तारों को देखो चांद की मस्ती को तो देखो मिलेगी उसके चेहरे की नजर आहिस्ता आहिस्ता मिलेगी उसके चेहरे की
सहर आहिस्ता आहिस्ता चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता. With that pleasant note, I wish that every lady just rejoice in being present, in being alive, in being what she is, and not what people think she is. So let us not chase career goals and aspirations. Let us just be ourselves. Let us just come out of the image what people have created for us. We are what we are, and we are simple human beings. And our only one goal, लक्ष्य जो हमारा है, वो है खुश रहना, स्वस्थ रहना, मन को साफ रखना, जीवन को सुंदर बनाना. ये हमारी हमेशा कोशिश होनी चाहिए. Wow. Beautiful, lovely. Lovely. That's so beautiful. Thank you so much, Aarti ji. And I welcome all my Facebook friends and all the people who are logging in to enjoy this show. And I also would like to call now Anila ji. And Anila ji, I think I have a question for you. I'm very eager to know the answer. So the question is, I want you to share a bit about the journey. And I know that you're always grateful to the wonderful support. So wonderful support, what you get from your family. And so how have been your journey so far in the Music Veranda? Please share with us. Thank you, Shivani. Thank you so much. Or I would rather like to share not only my journey in Music Veranda, but I would like to go a bit more elaborate, and I would like to actually share कि बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने contribute किया है मेरी life में. In fact, I've seen everybody helping me. So today I take it as an opportunity to share the gratitude. क्योंकि हमेशा मैं host रहती हूँ. आज मुझे opportunity दी है बोलने की, तो please रोकना मत. ठीक है. So thank you, good evening, good wishes to everyone on this world. I appreciate celebrating these days क्योंकि ये दिन ना कुछ एक milestone होते हैं जब हम सोचते हैं हाँ अभी तक क्या किया और आगे क्या करना है. So I really welcome these days, and I am also very thankful and grateful to Aarti and Shivani who took the initiative of curating this show. And curating a show on Women's Day is not easy, let me tell you. It takes lot of thought process. So wonderful, and thank you. So okay, I have written something about my journey. I would like to just read that so that I don't miss on anything. So I find my journey as very heroic, as I've been showered by a lot of support, love and encouragement from everywhere. I have never feel deprived about being a woman. So I start from my दादी, grandmother जिन्हें हम अम्मा कहते थे, उन्होंने हमें बहुत कभी भी differentiate नहीं किया. फिर मम्मी पापा they never said कि नहीं तुम्हें तमीज में रहना है या तुम्हें पढ़ना बहुत है या तुम्हें घर के काम करने हैं, कभी भी नहीं कहा. It was like all my choices were respected by my parents. I had two brothers whom I actually bullied, and then I moved ahead. Cousins थे बहुत सारे जिसमें boy cousins ज़्यादा थे, और I was always a rock star there. तो कोई भी शादी में मैं नहीं जाती थी तब तक वो लोग इंतजार करते रहते थे, वो बोलते थे मजा नहीं आ रहा है जब तक तुम शादी में नहीं आती. So that has been my journey till then. And then when I did my business management, I decided to move to Mumbai. So my parents were all there to support me. In fact, उस time like काफी time पहले 20-25 साल पहले भी मैं दिल्ली में independently रही 1-1.5 साल to do my career, and my parents they respected that. I got married, and I think that was I got married to Kamal, a very charismatic, very futuristic, and very responsible person. But when I think you get married, तो आप क्या करते हैं, आपको suddenly क्या पता नहीं क्या लगता है कि नहीं अब तो मुझे सब perfect करना है, मेरे को perfect wife बनना है, perfect mother बनना है, perfect घर रखना है, खाना सबसे अच्छा बनाना है, पार्टी करनी है तो सबसे अच्छी करनी है. ये पता नहीं अचानक से ये कहाँ से ये शुरू हो जाता है. पर ये जब शुरू होता है ना तो फिर आप करते रहते हैं उस रेस में भागते रहते हैं. फिर अचानक आपको समझ में आता है नहीं यार ये what am I doing this for? When you start actually feeling lost, और आपका जो inner soul होता है वो आपको बार-बार पूछता है भाई ये कर क्या रहे हो? So then you actually try to just relate to yourself. And I think that is
hello, yeah. I think that is the most critical and crucial part which lot of us undergo, you know. तो उसके बाद आप धीरे धीरे अपने में चेंजेस लाना शुरू करते हो, और ये सबसे डिफिकल्ट टाइम होता है, और इसमें हमको बहुत सारी स्ट्रेंथ चाहिए और इनर पावर चाहिए. That this is what I feel. So fortunately, right things happened with me at right time. So I remember कि मैं हम लोग शिरडी गए थे, and while coming back, you know, the flight got delayed, and I and Kamal, we were on very minimal conversation at that point of time. तो मैंने एक बुक ली रॉबिन शर्मा की, and I read that book. The flight got delayed. I read that book again, and I don't know, it was a turning point of my life. So that was first thing. And then Kamal enrolled me in a very powerful workshop, Rohan Singh's workshop, which again was a turning point, you know, which actually made me feel कि नहीं, magics होते हैं यदि हम अपने आप में believe करें. So these are few things that the right friends come into your life, and as soon as, you know, जब भी transformation journey होती है तो क्या होता है कि टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ से जाने लगते हैं, आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करते हो, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, हेल्थ और फिटनेस ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आ जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें होने लगती हैं. सो यू स्टार्ट मीटिंग वेरी ऑसम पीपल, एंड you start attending a lot of creative workshops, and you are on the path of transformation. So this has been my journey, and I am one Indra Nuri ka hai एक quote है which I would like to say, that you have to break rules. You know, you cannot just go by the standard and set rules. So the moment you start breaking rules, you know, then the life force starts happening. So it is about, as Aarti said, that it is about living each moment. It is about living with your hands open, with your heart full of compassion, gentleness, and connection. So life कोई examination नहीं है that you have to be successful. You have to be gentle to yourself. This is my thought. और be happy, joyful, and express your emotion. और मेरे एक यहाँ पे है कि हम लोग 3 लोगों से एंडोर्समेंट की और अप्रिसिएशन की बहुत ही ज्यादा उम्मीद रखते हैं, husband and father. So generally, you know, or these are 3 people, you know, they love you a lot. They are watching you all the time. Their eyes are on you, but they will take a lot of time to appreciate. So उनको आपको prove नहीं करना है. They are there to support you. So be in this journey, and I'm very, very grateful to everyone, all the men. In fact, the men who have been in my life have been, you know, more important, have played more important role. Like I can say Anurag, my bhai, because of him I'm a mentor. And as I said, Rohan Singhal, Robin Sharma, my workout teacher, you know, everybody, you know, जो मेरे बाल काटते हैं, सब कुछ, you know, everybody who they have contributed in my journey. And if I say about Music Veranda, when this thought Music Veranda came into my mind, so it was Gaurav and Gaurav Jain whom I approached, you know, and there are like such nice people, Jayesh sir, Madhu Mukesh ji, Uttam ji, and all these people who have made Music Veranda such a beautiful place. So I am very, very grateful and very, very thankful to everyone, and thank you, and please take the show ahead. I'll keep contributing. Thank you for listening to me. I hope my journey was inspirational and can help some more women. Thank you so much. Thank you, Anila. Wonderful. Thank you. Thank you. Thank you, so Anila much. ji. It was really nice talking to you, and it was really inspiring. And as we always reinforce and think that who have not supported us, हमें किसका साथ नहीं मिला, बल्कि हम उस पे फोकस करें कि हमें किसने सपोर्ट किया. This is a big way to self healing. और अगर हम उस पे glued रहे कि what has worked in our life, so things starts working. You know, this is a universal phenomena. Really grateful for this reinforcement, Anila ji. Now I really heartily welcome Nisha ji on this show. Nisha ji was here. Yes. Yes, Aarti ji. Yeah, Nisha ji. So we all know that Nisha ji is a founder of Chopal, and she has been so, you know, very well versed with managing varied roles. She's into multiple, you know, lines of business, and she's so talented. But my kind question to Nisha ji is that, what is her thought process of when she sees a couple that, you know, when a newlywed couple gets married, the focus and the priorities of the couple changes, you know.
they start focusing on marriage to make it work. They become extra conscious, extra, they try to overdo things at the same time, and they are not themselves. So what happens in the lieu that they get defocused from their goals, their achievements, their inner growth, their spiritual growth, their moral growth, and the things get fizzled out. So when they get fizzled out, they start blaming their marriage. So I would seek your guidance for all of us who's watching right now, that Nishaji, what is your perspective that when couple gets married and they come together to this institution, how they should take it so that they focus on the marriage, but their goals keep, automatically being pursued, how they manage it, how they should manage it. हेलो एवरीवन। क्वेश्चन तो बड़ा जनरलाइज किया हुआ है वैसे, क्योंकि सबकी लाइफ में अलग अलग तरह के सर्कमस्टेंसेस होते हैं। नो डाउट मैरिज इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर लाइफ, क्योंकि दोनों की लाइफस्टाइल एकदम चेंज हो जाती है। स्पेशली इन इंडिया लेडीज की लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है। नया घर, नया सर्कमस्टेंसेस, नए लोग, नया कल्चर, तो और एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं। लेकिन एक बहुत जनरल टॉक है कि भाई लेडीज को एडजस्ट करना पड़ता है, जेंट्स को नहीं करना पड़ता है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा हम लोग कई जगह देखते हैं कि लेडीज भी एडजस्ट करती है एज वेल एज जेंट्स, मैन भी एडजस्ट करता है। तो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है इसमें, ना कुछ है। इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि कभी हम सोचते हैं कि नहीं, जैसे कई मिथ होती है कि अब तो लड़की की शादी हो गई, अब वो कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो कुछ नहीं, आप किस फैमिली में जा रहे हैं, किन लोगों के बीच में जा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा फर्क है। आपकी जॉइंट फैमिली है, सिंगल फैमिली है, तो ऐसा कोई थंब रूल नहीं दिखता है मुझे। मैंने काफी सोचा इस बारे में कि भाई ऐसा क्या है, कोई हम एक लाइन में सबको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। लेडीज को जाएगी तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, अगर अच्छी सिंगर है उसको सिंगिंग छोड़नी पड़ेगी, अच्छी आर्टिस्ट है उसको आर्ट छोड़ना पड़ेगा, अच्छी एक्टर है तो उसको एक्टिंग छोड़नी पड़ेगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसी फैमिली में उसको एक्सेप्टेंस मिलता है, किसी फैमिली में नहीं मिलता है। तो ये बहुत पर्सनल सी चीज होती है कि कोई लेडीज अगर शादी होके कहीं जा रही है तो कोई ऐसा मुझे नहीं लगता है। कई जगह तो जो बॉय होता है उसको एडजस्ट करना पड़ता है कि अरे बस अब वाइफ आ गई, अब मुझे बाहर घूमने में जाना नहीं है कभी। ये तो कई मिथ भी होती है इसमें, पर ये मिथ भी ऐसी चली आती है कि जैसे पुराने जमाने में कहा जाता था कि भाई नहीं, लेडीज को लेट नहीं जाना, मैरिज हो गई है तो अब आप अपनी फैमिली तक सिमटी रहो, किसी से बात मत करो, ये मत करो। तो सारी मिथ से तो मुझे नहीं लगता है कि हम कोई थंब रूल बना सकते हैं कि भाई ऐसा ही होता है या वैसा ही होता है। लेकिन ये ठीक है कि लाइफ जरूर चेंज होती है सबकी, लेकिन आज के सर्कमस्टेंसेस और पुराने सर्कमस्टेंसेस में देखेंगे तो बहुत फर्क है। पहले तो फिर भी हम एक थंब रूल बना सकते थे कि हाँ भाई अब लेडीज की शादी हो गई, अब बस उसको चूल्हा चौका बच्चे ये सब देखने। लेकिन आज के सर्कमस्टेंसेस में हम नहीं कह सकते कि सब करेगी वो, या करना चाहिए, या कोई फोर्स भी करता है उसको। उसकी अपनी फ्रीडम होती है, वो सब अपना। तो आई थिंक जो आपने क्वेश्चन किया है मैं उसको जस्टिस कर पाई उससे साथ, क्वेश्चन के साथ। नहीं निशा जी, जरूर Hopefully. बहुत कायम कोशिश थी और हमने भी काफी सीखा आपके आंसर से। आपको एक शॉर्ट मैसेज देना चाहेंगी आज की जनरेशन में कि इफ दे टेक अप मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन, एक एडवाइस जो आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी हो और आपने सक्सेस पाई हो कि इफ दे डू दिस थिंग डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर देम इन मैनेजिंग वर्क लाइफ एंड देयर पर्सनल लाइफ। हाँ देखिए, ये तो एक जनरल चीज है, सभी लोग जो बड़े लोग भी समझाते हैं कि भाई आप एडजस्ट करें, एक्सेप्ट करें अपनी लाइफ को। तो आप अगर किसी फैमिली में जाती है, दूसरी फैमिली में, वहाँ के लोगों को अगर आप एक्सेप्ट करती है, उनके अकॉर्डिंगली आप अपने लाइफ स्टाइल चेंज करती है थोड़ा बहुत, तो वो नेचुरली आपकी लाइफ हैप्पी होती है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि खुश रहना, आई मीन
अगर आप खुश है तो दूसरों को भी खुश रख सकती है, दूसरों को आप खुश रख के भी आप खुश रह सकती है। तो यही बात है कि एक दूसरे से बंधी हुई रहती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये नहीं कहती कि कोई अपना कैरियर छोड़े, अपना पैशन छोड़े, अपना कुछ छोड़े, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करे। ऐसा नहीं कि मेरी आज शादी हुई है, मैं आज शादी करके जा रही हूँ और मुझे तो ये मेरा जो पैशन है उसको कंटिन्यू रखना है। आप कुछ भी करो, आपकी फैमिली में कुछ भी हो रहा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरा तो ये पैशन है और मुझे ये करना है। या बॉय सोचे कि ये लड़की आ गई है, ये आ गई है, आ गई है, मेरा तो जो चल रहा है वो चलेगा, मेरा तो जो नाइट पार्टीज है वो चलेगी, ये होगा। तो क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा हम लोग को शुरू में टाइम देना पड़ता है एक दूसरे को, फैमिली को भी, एक दूसरे को भी थोड़ा टाइम दे, थोड़ा समझें, और फिर हम अपना कोई भी पैशन है या जो भी अपना शौक है, अपना करियर है, वो शुरू कर सकते हैं। बट वी शुड गिव इट, आई मीन थोड़ा सा टाइम जरूर देना एक दूसरे को। हो सकता है साल भर लग जाए, हो सकता है 2 साल लगे, लेकिन लाइफ तो बहुत लंबी है अपनी, और ऐसा भी नहीं कि आपने 25 साल में शादी हुई तो 27 साल बाद आपका कैरियर कुछ भी नहीं होगा तो आप क्या करेंगे उसके बाद, ऐसा कुछ नहीं है। तो टाइम जरूर दें थोड़ा बहुत अपनी लाइफ पार्टनर को, दोनों एक दूसरे की फैमिली को, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है तो शायद सब चीजें स्मूथ हो जाए। लेकिन अगर आप जाते ही आप सोचो तो कहीं ना कहीं फिर फ्रस्ट्रेशन, झगड़े, झंझट ये सब शुरू हो जाते हैं। आई थिंक यही मैसेज देना चाहती हूँ कि पहले आप टाइम दीजिए, थोड़ा एक्सेप्ट करिए दोनों को, एक दूसरे को, दोनों के नेचर को, फैमिली को, सबको एक्सेप्ट करिए पहले, और फिर सब लाइफ स्मूथ हो जाती, सब एक दूसरे को पसंद करने लग जाते, फिर आप जो चाहे वो कर सकती हैं। बहुत जरूरी, बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी। तो हम 2 चीजें रिवर्स कर रहे हैं, पावर ऑफ जॉय यानी कि हैप्पी रहना, और अपने कंपेनियन के साथ हैप्पीनेस क्रिएट करना प्रायोरिटी से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर अचीवमेंट्स एंड फर्दर हैप्पीनेस। थैंक यू निशा जी, थैंक यू सो मच। शिवानी जी, आप कुछ पूछना चाहेंगी कविता जी से? थैंक यू सो मच निशा जी। काफ़ी अच्छा लगा, मतलब आंसर्स, ये वाला आंसर सुन के इट्स लाइक कि थोड़ा काफ़ी एनलाइटमेंट हो गया। एंड जैसे एक पाथ होता है, पाथ पे रोशनी आपने दिखा दी, आपका जो आंसर था वैसा कुछ लगा मुझे सुन के। सो थैंक यू सो मच निशा जी। एंड आरती जी, वी ऑल्सो हैव internationally acclaimed ODC dancer with us. Do you know this? We have Jaya Mehta ji with us, and I welcome her. I welcome an internationally acclaimed ODC dancer. She's a poet, writer, curator, mother, and a teacher as well. So I also have a question for her. Over to you, Jaya ji. Namaskar. So wonderful to be here. A very happy International Women's Day to everybody. Thank you. Thank you so much. A very warm welcome to you. And I have a question for you. Like, women have all the choices, but they decide to pick up the difficult ones. And that is what makes the life complicated. So, कुछ आप इसमें रोशनी डालिए. Like Yeah. how? Yeah, I think, you know, everybody will answer this differently. Everybody has different life choices. पर मैं अभी last 20 years of, you know, family person, dance person, whatever, जो भी मैंने चीजें enjoy की हैं life में, and I fully enjoyed everything. But मैं 2 चीजें बोलना चाहूंगी definitely to all my women friends, you know. सबसे पहली चीज है वक्त, समय। मेरी फेवरेट लाइन है वो फरीदा खानम की गजल की, जो वक्त के बारे में है कि वक्त जो है वो कभी दोबारा मुड़ के नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप ये प्लीज याद रखिए। और ऐश्वर्या राय ने भी अपने मेकअप के एड में बोला था, यू आर वर्थ इट, राइट? सो यू आर वर्थ इट। दैट टाइम दैट इज योर्स विल नेवर कम बैक। तो अपने लिए समय जरूर निकालिए, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी। हो गया मेरा यही कॉन्सेप्ट है कि 1 घंटा कम से कम दिन में सिर्फ अपना होना चाहिए, और उसमें अपने आप को फोर्टिफाई करिए। मतलब डू समथिंग लाइक रियली डिफिकल्ट योगा, यू नो, गार्डनिंग, मेडिटेशन और क्लासिकल डांस, जैसे जो मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि वो मेरा सेक्रेड स्पेस है। तो जब मैं उस स्पेस में जाती हूँ
मैं अपने आप को फोर्टिफाई करती हूँ और सबको पता होता है कि इस टाइम कमरे में कोई नहीं आएगा, और चाहे कुछ भी हो, आंधी हो, तूफान हो, ये मेरा टाइम है और ये किसी को नहीं दूंगी मैं। तो आपको सुनने में सेल्फिश लगेगा, लेकिन जब मैं वो 20 इयर्स रोज करूंगी तो आई एम अ स्ट्रॉन्गर फोर्टिफाइड वुमन। और जब मैं फोर्टिफाइड हूँ तो फिर तो मैं सबको हेल्प कर सकती हूँ, राइट? आई कैन एनेबल माई चिल्ड्रन, आई कैन एनेबल माई स्टूडेंट्स, आई कैन एनेबल माई हस्बैंड एंड माई एक्सटेंडेड फैमिली, आई कैन डू इट। पर अगर मैंने शुरू में ही अपने आप को बिखेर दिया सारा टाइम सबके ऊपर और अपना वो सेक्रेट टाइम कभी मिला ही नहीं अपने आप को फोर्टिफाई करने के लिए, जैसे योगा से मुझे आजकल बहुत मजे आ रहे हैं, मैं हैंड स्टैंड्स कर रही हूँ, मैं अपना पूरा वजन बाजू पे लेना सीख रही हूँ, तो मैंने कभी ये किया नहीं, अब सीख रही हूँ मैं, इतना अच्छा लग रहा है ना। आई एम फीलिंग स्ट्रॉन्गर एट 40, आई एम फीलिंग मच स्ट्रॉन्गर देन व्हाट आई वाज। तो ऐसे हर एक जना अपने आप यू नो फिगर आउट कर सकता है व्हाट दे वांट टू डू, बट इट हैज टू बी अ प्रैक्टिस। तो मैं कहूंगी वक्त निकालिए, अपने लिए वक्त निकालिए, क्योंकि वक्त दोबारा नहीं आएगा। और दूसरा, जो हम ये इतना ज्यादा शादी और करियर इन सब की बातें करते हैं, ये तो बड़ी स्टूपिड सी पोलैरिटीज होती है मेरे हिसाब से। यू नो, जिंदगी सिर्फ शादी और सिर्फ करियर नहीं होता है, उसके बीच में जो जूसेस है, जो रस फ्लो कर रहा है ना लाइफ में, वो ही असली चीज है। और औरत के अंदर वो पावर है कि अगर वो रोज योगा करे, अगर वो रोज अपने आप को फोर्टिफाई करे, डांस करे, म्यूजिक करे, जो भी चीजें हैं, लेकिन रोज एक प्रैक्टिस की तरह, जिसको हम बनाना है और बनाना है और बनाना है और डेवलप करना है। अगर हम कोई भी एक चीज को लेके ऐसे साधना की तरह करेंगे तो हमारे अंदर वो जूसेस फ्लो करेंगी जो कोई करियर और कोई शादी नहीं दे सकता। सो प्लीज फोर्टिफाई योरसेल्फ। और इससे मुझे एक पोएम याद आई, मैं इतनी अच्छी बातें सुन रही थी तो मैंने अपनी पोएम निकाली जो मैंने पहले लिखी थी, मैं बुक द पोएटिक सारी, और आज ध्यान में आया क्योंकि आज के लिए बड़ा रेलेवेंट है। इस पोएम का नाम है दिस मैरिडनेस। और मेरा ये विश्वास है कि सबसे पहले हमें खुद से शादी करनी चाहिए। बी मैरिड टू योर सेल्फ, बस द सेल्फ, द इनर सेल्फ, your own intuition, your own self has the juice of life। तो अपने आप से शादी करिए, जब आप फुल फील करेंगे तो किसी और से शादी करिए उसके बाद। तो मैं जब छोटी थी तब तो मुझे ये बात पता नहीं थी, but now I finally figured it out। So I'll read out this poem to you। This marriedness, married to my being, this red intimate self, blushing bright and radiant, this marriedness, an inner pink glow, the big red bindi, I find the beloved, me. This marriedness, my inner spaces, the walls of my inner houses, lined with love. This marriedness, quiet, fragile, candy floss-like. How do I hold on to you, my intimate self? Sometimes I meet you, marriedness, drenched in art, swaying with the trees, stitching up love. I met her, her garden of being, it suffused the universe till everything felt intimate and fragrant. My inner architecture opened to the starry sky, swimming with the fishes. I travel many milky ways. Her, me, she, we all dissolve. Sugariness. In the deepest garden, we bloom red together. A drought, then rains, unlocked locks everywhere. She found marriedness in her big red bindi. So that was my little thoughts about how I feel about being married to myself. And every day I like to build on it. So मुझे जो पसंद है, I build on it, you know, whether it is my yoga or dance. And I just bought lots of plants again in the house. I've filled it up with plant energy because अभी बसंत ऋतु है, you know. I'm experiencing the Vasant Ritu outside and inside, and when you stay with it, then you are in flow, you know. So when you find that flow, I think women are all lyrical and magical and poetic. जो फूलों में है, जो moon में है, जो हवा में है,
वो हम में है, ये है हमारी खास बात। तो उसको सिर्फ एक करियर और एक शादी और एक आदमी और एक बच्चों में मत बहाइए। मतलब डोंट लूज योर पोएट्री, यू फाइंड द सेकंड थिंग आफ्टर वक्त जो मैं बोलूंगी वो है पोएट्री। Find your inner poetry, write, write every day a little bit, listen to your favorite music, put some best favorite flowers next to you, always on your table. Have your own table in the house, put your own flowers, write your own poems and stay with your poetic self. So, जब मैं गाने सुनती हूँ, जब मैं कुछ लिखती हूँ, फूल पौधे लगाती हूँ, तो मुझे बहुत रस मिलता है, और वो रस सबसे ज्यादा तो मुझे डांस में ही मिल जाता है, लेकिन वो मेरे जीवन में भी आ गया है। डांस के थ्रू धीरे धीरे वो मेरे जीवन में बहने लग गया है। तो इट्स सो ब्यूटिफुल। सो you find your own magic, you find your own poetry। इतना ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, लॉजिकल, पर्पसफुल ढंग से नहीं सोचिए, थोड़ा सा बहने दीजिए अपने आप को। जो बहाव है ना, वो ही पोएट्री है। So what is your poetry? Find it, find your poetry, because women are all poetry. And I will end it with the 2 lines of my favorite song, which is also floral, which is Rajnigandha. Rajnigandha, फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। So that's my favorite line। and आप सब रजनीगंधा हैं, आप सब खुशबू हैं, आप खुशबू फैलाते हैं। अपनी खुशबू सेल्फ के साथ रहिए, enjoy it, because सारी दुनिया नीरस है और सारा काम women का है, to make the world more fragrant, more juicy, more beautiful and navras। Wow. So nice, so elated। Thank you। मजा आ गया जया जी। It was mesmerizing, I guess, है ना? ऐसा लगा कि कोई नृत्य नाटिका चल रही है। जया जी, if you don't mind, मैं ना पोएट्री सीखने आने वाली हूँ आपके पास। It's like ऐसे जो वो रस वाली जो पोएट्री है ना, I'm coming to you and all those things। शिवानी कितना अच्छे से बताया ना, these are the easier choices that you can make, and we decide to make the more difficult ones। Definitely, yeah। and that is why हम लोग चेस करते रहते हैं उन डिफिकल्ट चॉइसेस को, और हम लोग परेशान करते हैं, है ना जया जी? यही है ना? या आई थिंक देखो, डिफिकल्ट चॉइसेस जो है ना, वो तो हमें मेहनत करनी है। समझ लो, इफ माय किड्स आर देयर, आई हैव टू रियली वर्क हार्ड ओवर से सपोज नेक्स्ट 6 months on some particular subjects with them, वो तो मुझे करना ही है, ठीक है। लाइक सपोज, या फिर मुझे अपनी फैमिली में किसी को कुछ हेल्प करनी है, लेकिन जो रस वाला पार्ट है वो कहाँ से आएगा? वो कहाँ से? Exactly। वो तो मुझे खुद ही को देना है ना। तो खुद को रस कैसे देना है, वो जूसेस कैसे देने, चाहे वो अच्छी सी ड्रेस पहन के, कल मैंने ये नेकलेस खरीदा अपने लिए, गिफ्ट फॉर माई सेल्फ, सो जो मुझे रस देना है अपने आप को, वो तो मुझे खुद सीखना है ना। कैसे दूंगी मैं? तो मैंने अपनी योगा क्लास खुद ज्वाइन करनी है, अपनी पसंदीदा फूल खुद लगाने हैं, अपने पसंद की पोइट्री, अपना राइटिंग, अपना टाइम, समय सबसे इंपॉर्टेंट है, अपना टाइम जो सिर्फ अपने लिए है, ये तो मैंने ढूंढना है ना। तो मैं काम भी कर लूंगी, जो डिफिकल्ट चॉइसेस है वो भी कर लूंगी, दैट्स फाइन, बट ये रस वाला पार्ट तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्यूटीफुल। यू बहुत सारा रस डाल दिए, थैंक यू। राइट, ब्यूटीफुल। Thank you so much। Thank you so much, Jaya ji। It was really wonderful। And now we have Aarti ji with us। Aarti ji। I think Shivani, I think connection में कुछ problem है। some connection problem। Shivani, I would just like to interrupt in the flow। I would just like to greet the प्रेमलता तुलसियान आंटी जो कि चौपाल से हैं, और मैं उनका वेलकम करना चाहूंगी एक बार, और मैं चाहूंगी कि वो भी जरा इस टॉपिक पे कुछ हमें बताएं। आंटी आप हैं क्या? हाँ जी, मैं हूँ, मैं सब सुन रही हूँ। जया जी का बहुत ही शानदार वक्तव्य मैंने सुना। हालांकि मेरे को अंग्रेजी थोड़ी कम आती है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय लगा, बहुत ही अच्छा लगा, वेरी शानदार, बहुत एंजॉयफुल था। उन्होंने जो जीवन के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करी हैं वो लाजवाब है, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन देखिए ये अपना अपना दृष्टिकोण है। मुझे कुछ मेरी बात कहने का मौका मिला है तो मैं इसको कुछ दूसरे ढंग से पेश करना चाहती हूँ। उनकी जया जी की जो बातें हैं वो तो अपने स्वयं के बारे में है कि अपने हमें अपना जीवन कैसे जीना है। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो हमें कुछ अपनी देश की महिलाओं के बारे में भी सोचना है। सिर्फ स्वयं के बारे में नहीं सोचना है, सबके बारे में सोचना है। इसलिए मैं 2-4 बातें उनके लिए भी कहना चाहती हूँ। देखिए बहुत अच्छी बात है, हमारे देश में भी हर क्षेत्र में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है और अभी भी है। हर क्षेत्र में महिलाएं, युवा शक्ति अपना अपना परचम फैला रही हैं। हेलो जी आंटी, आपकी आवाज आ रही है। बोलिए मेरी आपकी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। तो बहुत बड़ी शिक्षा, मेडिकल, इंजीनियरिंग, नेवी, मिलिट्री, वायु सेवा, हर क्षेत्र में महिलाएं अपना अपना प्रतिनिधित्व कर रही हैं। किंतु संख्या के हिसाब से देखा जाए तो मेरा जहां तक ख्याल है 5% भी नहीं बैठता। यह हिसाब बहुत, बाकी 95% महिलाएं आज भी पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं। आज भी पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं। पुरुष प्रधान समाज में आज भी महिलाओं को दोयम दर्जा ही प्राप्त है। अपन कितना भी स्वाधीनता का कितना भी वो कर लें, लेकिन जो असलियत है वो तो वही रहेगी। पढ़ लिख कर अच्छी कंपनियों में सेवारत महिलाएं भी शाम को जब घर लौटती हैं तो अपने घर गृहस्थी संभालती है, क्योंकि इसके पीछे कई कारण है। हम महिलाओं की घर से पूर्ण समर्पित रहती है। हम घर हमारी आत्मा के साथ जुड़ा है। कार्यशील महिलाएं भी घर के प्रति बहुत सजग और कर्तव्य परायण होती हैं। इसके पीछे जो इसकी सुलभ भावनाएं होती हैं, वे भावनाएं हर महिला को घर से जोड़कर रखती है। हम अपने आप को घर से अलग नहीं कर सकते। वे भावनाएं हमें घर से जोड़ के रखती है। पुरुष वर्ग शुरू से ही शासन करने को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता है। आज स्त्रियों से उम्मीदें बढ़ गई हैं। घर और नौकरी दोनों क्षेत्र में उसके ऊपर डबल बोझा लाद दिया गया है। दूर जाने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन पहले प्रेरणा जी ने अपने जीवन से जुड़ा एक वाक्य सुनाया था, वो सुनकर बहुत अफसोस हुआ। यह तो सिर्फ एक उदाहरण है। भारत ग्रामीण प्रधान देश है। गांव में जो आज भी औरतों की दुर्दशा है, यह बहुत अच्छी बात, एक शिक्षा का प्रसार हो रहा है। गांव में लड़कियां पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहती हैं। आज भी शिक्षा की चेतना उन बच्चों में आ गई है। कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है, रोज ही पढ़ने को मिलता है, गांव में नाबालिग लड़कियां जिनकी शादी बचपन में कर दी जाती है, वो अब पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहती हैं। वो तो बचपन की बातें थी, लेकिन अब वो अपना भविष्य सुधारने के लिए कुछ पढ़ लिख करके बनना चाहती है। लेकिन होता क्या है, ससुराल वाले आ जाते हैं, हम तो विदा कराएंगे, ले जाएंगे। और जो विरोध करती है लड़कियां, तो असामाजिक तत्वों का मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी। हमें पता है कि मतलब स्थिति है, लेकिन आज का जो हम प्रोग्राम है, हम एक खुशी का सा प्रोग्राम, खुशी का सा माहौल रखना चाह रहे हैं। तो हम चिंता की चीजें हम मतलब है, चिंता है। मैं चाहती हूँ, अपने विचारों में तब्दीलियां चाहती हूँ। मैं अपने कुछ करके दिखाना है। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था जोया अग्रवाल को, वो विंग कमांडर हैं, बोइंग 770 उड़ाती हैं, और उत्तरी ध्रुव में गई थी। सबसे पहले उन्होंने एरोप्लेन, 4 महिलाओं के साथ में उन्होंने एरोप्लेन चलाया था। नहीं तो ये सब भी बातें भी अपने को दिमाग में आती हैं। मैं इनफैक्ट मैं थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट बोलना चाहूंगी। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि प्रेमलता जी जो बात छेड़ रही हैं, ये हमारी प्रीवियस जनरेशन की फेमिनिस्ट हैं, और फेमिनिस्ट होना भी जरूरी है, क्योंकि ये भी बड़ा पॉजिटिव है। अगर हम फेमिनिस्ट कोई रहेंगे नहीं तो कैसे सुधरेगा। और मैं ये भी बोलूंगी कि प्रेमलता जी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। हमारे सारे घरों में, परिवारों में आंखें खोल के रखिए,
और पेट्रियार्की सब जगह है, छोटी छोटी चीजों में है और बड़ी छोटी छोटी चॉइसेस में है। और जैसे कोई आपको बोले ना कोई ऐसी सी बात, उसी टाइम टोकना चाहिए उसको, ताकि प्रेमलता जी जो बोल रही है ना, इस तरह के एग्जाम्पल्स हमारे घरों में नहीं बने। फेमिनिस्ट ही है और ये बहुत अच्छी बात। मैं आपको बताऊं प्रेमलता जी, मैं ऑफ टॉपिक जा रही हूँ पर एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ। मैं एक कैफे में जाती हूँ, वसंत विहार में एक कैफे में जाती हूँ कॉफी पीने। अंजू जी वहां की बहुत अच्छी सर्व करने वाली फैंटास्टिक मतलब एम्प्लॉई है, और वो जो कॉफी बनाती है ना कोई नहीं बना पाता वो। तो मैंने अंजू जी से कभी बातचीत करी, मैंने कहा तो कितनी स्मार्ट है। यूरोप में मैंने जब भी किसी को देखा है ना रेस्टोरेंट्स में मैनेजमेंट, तो वो अंजू जी उतनी स्मार्ट है, ठीक है, और यंग एंड रियली टैलेंटेड। तो मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा आपके फैमिली आपको सपोर्ट करते हैं, आपको कोई कुछ कहता नहीं? और जैसे प्रेमलता जी ने बोला ना वैसा एग्जाम्पल उन्होंने मुझे बताया कि मैं जब 12th में थी, मैं मुस्लिम फैमिली से हूँ, लखनऊ से दिल्ली में आई, 12th में मेरी जबरदस्ती शादी कर दी गई बिना मेरी पढ़ाई खत्म किए। वो रोने लग गई मेरे सामने और कहती कि मैंने उसके बाद 1-2 साल जब देखा उस आदमी की ऑलरेडी शादी हुई भी थी, वो मुझे बहुत बुरा ट्रीट करता, मैंने उस शादी को ठुकरा के निकाल दिया अपनी लाइफ में से। मैंने इंटरनेट से पता करके अपनी 12th की पढ़ाई खत्म करी, मैंने अब फर्दर बैचलर्स करी है। मैं अपने परिवार अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, लेकिन मैंने उनको बोला हुआ कोई मुझे शादी की जबरदस्ती नहीं करेगा, मैं नौकरी करूंगी और आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, और मैं पीएचडी भी कर रही हूँ, उनको मैंने बोला हुआ है। कहना चाहती हूँ कि हमें उनको मौका देना चाहिए। मजा आता है कि हाँ लड़कियां हैं, औरतें हैं, बदल रही हैं वो अपने जीवन को, आप हमें बुद्धू नहीं बना सकते अब। वेरी नाइस। हमें बदलना है, बदलना चाहिए, बदलना है हमें, और अपने आप को सशक्त करना है, अपने आप को मजबूत करना है, ताकि हम जमाने से टक्कर ले सकें। इतनी महिलाओं को मेरे को इतना अच्छा लगता है जब जैसे जया जी ने बताया कि वो खुद के लिए जीती, इतना एंजॉय करती, वेरी नाइस, बहुत बहुत सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो लेकिन ये बदलाव आएगा कहाँ से? हम लोग भी इसके लिए कोशिश करेंगे तब तो आएगा ना। हम स्वयं सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तब तो बात नहीं बन सकती ना, हमें सबके बारे में सोचना पड़ेगा। जैसा कि निशा जी ने बताया कि अपन बहुत ज्यादा तो नहीं उस चीज को कर सकते एकदम जाते से कि सब कुछ हमको हासिल हो जाए, उसके लिए अपने को कुछ भी बलिदान तो करना पड़ता है ना, कुछ समय देना पड़ता है। आंटी सैक्रिफाइस तो हाँ, सैक्रिफाइस बहुत जरूरी है, और सैक्रिफाइस सब कुछ जरूरी है एक्चुअली सारे, और ये कमिटमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैक्रिफाइस सब कुछ हमारी लाइफ का बहुत अहम हिस्सा है। और विजय प्राप्त करने के लिए महिलाओं को, युवा शक्ति को स्वयं को मजबूत बनाना पड़ेगा, ताकि वह हिम्मत के साथ इन समस्याओं से दो हाथ कर सके। शिक्षा का प्रसार और बढ़े, नारी शक्ति पूर्ण शिक्षित हो, दीक्षित हो, विचार मजबूत बने। अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब में देखा था, बालिका विद्यालय में एक शिक्षक जी, सरकारी तंत्र कितना कमजोर है। एक अध्यापिका जी स्कूल में पढ़ा रही थी, गलत सलत पढ़ा रही थी, तुरंत निरीक्षक साहब आ गए। निरीक्षक साहब ने देखा, पूछा ये क्या है, देखा और फिर बोला कि आप गलत पढ़ा रही हैं। 2-4 बातें और पढ़ी, उनको शिक्षिका उस बात का जवाब नहीं दे सकी। सरकारी तंत्र है, भ्रष्ट है, सब जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है, क्या करेंगे बताइए। इन सब बातों को अपने को खुल के विरोध करना चाहिए और महिलाओं के लिए सजग होना चाहिए, बहुत जरूरी है। जी आंटी, थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा आपने पर्सपेक्टिव दिया है, और बहुत जरूरी है सजग रहना और इन सब चीजों के बाद। जी आंटी, लड़कियों को पूर्ण शिक्षित करना बहुत जरूरी है। एकदम एकदम, वी एग्री ऑन दैट पार्ट, एकदम आप ठीक बोल रही हैं, और आई वुड बहुत जरूरी है। जी आंटी, थैंक यू सो मच, आपके व्यूज बहुत एक अलग पर्सपेक्टिव लेके आए हैं, और थैंक यू आंटी सो मच। किया, सब लोगों को सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। ओवर टू शिवानी। शिवानी नेक्स्ट क्या है, क्या पर्सपेक्टिव है? आई न्यू it this session is going to be very challenging, you know, and so but I'm happy that we are yes sure, definitely Anila ji, that is challenging, and at the same time we are getting so many beautiful solutions. Absolutely yes. So I would like to read something, that you have everything in you. This is for the woman. You have everything in you, and that is the reason why the world is celebrating you.
Like if you wish, you can do anything. If you wish, you can bring the change, like any sort of change. So this is how it is. And now I would like to invite Aarti ji. Yes. I have. So I think. थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत there. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और ये बहुत ही मोमेंटस मोमेंट है हमारे लिए, सबसे सीख रही हूँ। और थोड़ा सा बस स्पेशल मेरे लिए ज्यादा है क्योंकि मैं अपने में थोड़ा सा जया जी को, थोड़ा सा प्रेमिता जी को, थोड़ा सा रेणु जी को, थोड़ा सा अनिला जी को अपने में पाती हूँ। तो शायद मैंने सब कुछ करने की कोशिश करी है। और मेरा ये मैसेज आपके लिए है और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है जो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको देना चाहूंगी कि देखिए मेरे जीवन में भी बहुत शुरू से बहुत संघर्ष रहा। और मैंने अपनी चॉइसेस की वजह से, बहुत जो भी मेरे चॉइसेस रहे उसकी वजह से आई हैव बीन जज्ड, आई हैव बीन गिवन लेबल्स। और बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं, हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हम लोग बहुत सेल्फ राइचियसनेस कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं। जैसे मेरा बहुत रुझान रहा है सोशल एम्पावरमेंट में, हमेशा मैं करती आई हूँ और इसको और स्केल अप करना है मुझे। करियर में सिंगल पेरेंट हूँ तो बच्चे के लिए पूरा पूरा डेडिकेशन, टफ चॉइसेस। तो मैंने शायद इस बीच जो मैंने थोड़ा सा अपना वो महान कैरिकेचर और कैंडिडेचर दिमाग में रखा था, उसको अचीव करने के लिए जो हमारे अनरिजॉल्व पेन्स होते हैं अंदर के, अनरिजॉल्व इश्यूज, क्योंकि वो लेबल, वो जजमेंट्स, वो प्रॉब्लम हम अंदर रखते हैं। ऊपर से हम बहुत सुपर वुमेन, वंडर वुमन बनने की कोशिश करते हैं कि हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, हम ये एम्पावरमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं, हम बच्चों को भी देख रहे हैं, हम सब अच्छा अच्छा कर रहे हैं। और साथ साथ में बिकॉज लेडीज इमोशनल होती हैं तो सिचुएशन प्लस इमोशन गेट्स इनटू ड्रामा। जो सिचुएशन और इमोशन ड्रामा होता है वो हमारे अंदर वो एक्युमुलेट होता है, वो अनरिजॉल्व होता है। उसकी वजह से मुझे एक बहुत ही बड़ा जोल्ट मिला लाइफ में, बहुत ही क्रिटिकल इलनेस के रूप में, जिसका मैं नाम भी लेना नहीं चाहती आज के दिन। 2019 में, बहुत पुरानी बात नहीं है। और जो 2019 में मेरी आंखें खुली कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हम सब कुछ करें, लेकिन अगर हमने अपने अंदर का पेन, अपने अंदर के रिजेंटमेंट्स, ग्रजेस, प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं करें, उसको हम गंदगी को ढक देते हैं तो बदबू आना बंद नहीं हो जाती। और हम ऊपर से बहुत उसको फ्लावर्स लगा रहे हैं, सेंट लगा रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, सोशल एम्पावरमेंट कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, एंड बहुत स्पिरिचुअली आप बहुत इवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन आपने अंदर की वो सिंप्लिसिटी, वो ब्यूटी को कहीं उसको आपने दबा दिया। तो उसकी वजह से मुझे बहुत क्रिटिकल इलनेस हुई 2019 में, जिसकी मेरी यही लर्निंग है सबके लिए कि आप सब कुछ करें लेकिन सहज हो जाए। सहज होने में बहुत पीस है, बहुत हैप्पीनेस है कि जस्ट बीइंग इन टुडे एंड नॉट चेजिंग एनीथिंग। जिंदगी में सब कुछ इम्पोर्टेंट है, आपका सबके लिए सेवा भी इम्पोर्टेंट है, हम, लेकिन वो तभी कर पाएंगे अगर हम हेल्दी हैं, मेंटली हेल्दी हैं। और हम सोचते हैं कि ये रिजेंटमेंट, ये ग्रज, ये दुख, ये परेशानी, ये कुंठा बड़ा नेचुरल है, एंजाइटी तो नेचुरल है, स्ट्रेस तो नेचुरल है। उससे मुझे ये कहा तो वो अंदर है, वो तो नेचुरल है, मेमोरी में तो रहता ही है। लेकिन वो जिसको हम नेचुरल समझते हैं वो इतना एबनॉर्मल बीमारी का रूप ले लेता है। आप you may be working out, you may be going to exercises, but maybe you have not taken that spiritual exercises for your within, which results into critical illness at times. उसके बाद जो मेरी जिंदगी में टर्न लिया है, that's absolutely I'm changed person, 360 degrees changed। सब कुछ करना है, जैसे जया जी ने बोला, करना तो है ही, उससे आप भाग नहीं जाएंगे, लेकिन आपकी जिंदगी का नजरिया बदल जाता है। आपको कुछ कह रहा है तो आपको पता है कि जैसे बाहर पोल्यूशन है, ऐसे लोग बाग आपको जज करेंगे ही, टेबल्स देंगे ही, उसमें आप सहज रहिए। डोंट गेट कैरिड अवे, डोंट गेट इमोशनल, डोंट गेट पर्टर्ब। आपको बस अपना मस्तिष्क साफ रखना है, दिल साफ रखना है, अपनी हेल्थ को ठीक रखना है। जब आपका दिमाग साफ है, दिल साफ है, आपका हेल्थ बिल्कुल ठीक है, तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकती हैं। सहज हो जाइए, डोंट टेक थिंग्स एज दे कम। उसको आपने जैसे आ रहा है आपकी तरफ एक बॉल, आप एक बॉल फेंक दें, वो रिएक्शन करें, दुख बनाए, इमोशनल ड्रामा क्रिएट करें, इट वुड नॉट गेट यू एनी हैप्पीनेस। So my message today is very simple, very extempore as usual, that stay calm, stay spiritual, enjoy your being, enjoy today, time is now। ये मेरी जिंदगी की नई सुबह है जिसमें मैं किसी को जज नहीं करती, और मुझे अगर कोई जज करता है तो मैं बिल्कुल कैरिड अवे नहीं होती। आई ब्लेस दैट पर्सन, आई प्रे फॉर दैट पर्सन, एंड दैट्स द आइडिया अबाउट लिविंग। स्टे पीसफुल, स्टे हैप्पी। और बिकॉज ये मेरी जिंदगी की नई सुबह है, नेक्स्ट सुबह का छोटा सा गाना गाऊंगी, एंड आई होप यू लाइक इट।
धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी, धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी। पंछी चले अंबर को, माझी चले सागर को, प्यार का नाम जीवन है, मंजिल है प्रीतम की गली, धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी। किरणों से दामन भर लो, प्रीत से तुम तन मन भर लो, जिसमें जितनी प्यास जगी उतनी प्रीत मिली, प्यार का नाम जीवन है, मंजिल है प्रीतम की गली। मैं बस यही होप करती हूँ कि आपकी जिंदगी में नए होराइजन्स आए, नए हैप्पीनेस आए। गॉड ब्लेस। Elated, very beautiful. Thank you so much, Aarti ji. That was beautiful. So what's next, Shivani? शिवानी म्यूट पे हो शिवानी। Next we have Neena ji with us. Neena Gana, we'd like to hear a song from Neena, right? Yeah. She has a beautiful story as well to tell us. Beautiful transformation. Wow. Yeah. So, over to you. Is it me? Yes. Oh, acha. Hi, Neena ji. Neena. Hello, everyone. A very warm welcome, Neena ji. Welcome, Neena ji. Hello, good evening, everyone. It's a beautiful evening with lovely people I can see. And Aarti was just outstanding, amazing. Anila, congratulations for this thank you. beautiful Women's Day program. And though I don't have any story, but still a little bit I would like to share. You know, I take everything the day as it comes. Things come in my life. I just follow them the way they come. Everybody, like my husband, my in-laws, everybody are there behind me. I am free to do whatever I want to do. Like when I got married, my daughter was born immediately, and so that time I couldn't take my music lectures, music lessons ahead. And after that, then after a long period of time, I thought that why not just take all these things, what the things are left behind. उनको क्यों ना मैं आगे लेके जाऊं और क्यों ना उस चीज को मैं आगे बढ़ाऊं. So like my husband said, no, there's no problem. Whatever you want to do, just go ahead. Whatever you feel like doing, आप आगे बढ़ो. Then I took all my lessons and I took music coaching again after I think a span of 30 years. 30 साल बाद वापस मैंने अपने सारे म्यूजिक ले सब कुछ स्टार्ट किया. Taking the care of my family and my daughter, my husband, like he goes out of station and coming back. Lot of things are there, but हाँ, आपको एक अच्छा husband backbone की तरह आपके पीछे जो लोग खड़े रहते हैं, आपको बहुत support मिलता है, और that's the one reason which takes you ahead. And but I'm happy, and a part of that, then suddenly Anila brought this beautiful music veranda, and I think this veranda changed the lives of so many people. इसे कहते हैं ना वो बहारा बनके बहार बनके हमारे जीवन में आई, and we all are having a gala time in this music veranda. Though these days I'm not so frequent with it, I am not able to attend sessions, but still I love each and everything about veranda. It's a beautiful platform for everyone. So Anila, here I will sing one song for everyone. Yes, Neena, thank you.
सरे गम पा 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 धा मरे गार मेरे संग मेरे साजना सरे गम पा 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 धा मरे गार मेरे संग मोरे साजना धाम धा तू मेरा मरे माँ मैं तेरी चलगार मेरे संग मेरे साजना सारे गम पा 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 धा मरे गार मेरे संग मेरे साजना मैं हूँ बाहर छोड़ो ना भैया आज गीतों से रंग दोगे सैया मैं हूँ बाहर छोड़ो ना भैया आज गीतों से रंग दोगी सैया धाम धाम तू काला मरे माँ मैं गोरी अरे ले मेरे संग मेरे साजना सरे ग म पा 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 धा मरे गार मेरे संग मोरे साजना My life starts from singing and ends at singing. So wherever I go, I just find happiness. गाइए, जीवन को आगे लेके जाइए और हर वक्त गाते रहिए. Thank you so much. Awesome, awesome, awesome. Wow. मजा आ गया. Thank you so much. Very inspiring, Meena ji. Wonderful. Yeah, and now I would like to invite Uttam ji here in this beautiful panel, and would like to tell that Uttam ji is a jeweler by profession. He also stays in Delhi, and I'm sure he has some wonderful things to say. So over to you, Uttam ji. थैंक यू शिवानी जी और गुड इवनिंग एवरीवन. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने में और सुबह से ही देख रहा हूँ हर ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं ऑल द लवली लेडीज विश यू ए वेरी हैप्पी वुमेन्स डे. मैं सबको ये कह रहा हूँ यार नॉट विश नॉट ओनली टू द वुमेन बट रादर वी शुड विश ऑल द मेन आउट देयर ए वेरी हैप्पी वुमेन्स डे. जितने भी मर्द हैं जो हम लोग हैं वी आर वेरी लकी दैट वी हैव वुमेन इन आवर लाइफ. So I want to wish all the men a very happy Women's Day. और मेरे साथ तो महिलाओं का खास संबंध है और खास एक कनेक्शन है बिकॉज ऑल माई लाइफ आई हैव बीन विथ लेडीज ओनली. मतलब मेरे जीवन में जेंट्स का बहुत ही कम रोल रहा है. बचपन में माँ थी और 6 बहनें थी. बड़ी बहन के रूप में गार्डियन थी और छोटी माँ थी. बाकी 5 बहनें थी. उनमें से कोई दीदी, कोई दोस्त, कोई बहन, कभी लड़ाई, कभी तकरार. फिर जैसे स्कूल में भी जो मेरे जो फ्रेंड्स थे ज़्यादातर गर्ल्स के साथ ही मेरी दोस्ती होती थी बिकॉज मैं गाने का मुझे शौक था बचपन से. तो हमेशा झुंड लगा होता था अगल बगल में. कभी लड़कियां फरमाइश करती थी, कभी उनको ज़बरदस्ती पकड़ के सुनाता था. फिर थोड़ा बड़ा हुआ बेस्ट फ्रेंड के रूप में भी बेस्ट फ्रेंड भी मेरे को एक लड़की के रूप में ही मिली. लड़कों से थोड़ा सा पता नहीं समा मेरा लड़की से कनेक्शन ज़्यादा रहा तो बेस्ट फ्रेंड भी लड़की ही बनी. फिर कुछ टाइम के बाद वो प्रेमिका बनी और फिर उससे शादी हो गई. शादी के बाद फिर पहला जो हमारा चाइल्ड था दैट वाज आल्सो ए गर्ल. वो मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत मोमेंट था. तो अगेन फिर कुछ टाइम के बाद पापा के गुजरने के बाद अगेन आई वाज ऑल अलोंग विद गर्ल्स लेडीज. मम्मी थी, वाइफ थी, बेटी थी. और फिर यहाँ पे कुछ टाइम के बाद अब जैसे म्यूजिक वरांडा में मेरा कनेक्शन हुआ तो यहाँ पे भी ज़्यादातर लेडीज ही हैं. अभी भी इस टाइम पे मुझे लग रहा है शायद मधु मुकेश जी होंगे मेरे अलावा जेंट्स में. तो इट्स ऑल लेडीज. और यही नहीं, ये तो घर की बात हुई. घर के बाहर भी चूंकि मेरा प्रोफेशन ज्वेलरी का है तो इट्स ऑल लेडीज अगेन. हेलो भाभी जी, हेलो आंटी जी, हेलो माता जी. कभी कलाई पकड़ के उनका चूड़ी का हाथ साइज बताता हूँ, कभी उनकी उंगली पकड़ के अंगूठी का साइज बताता हूँ. तो इट्स बिन ऑल लेडीज. मतलब मुझे तो लगता है कि मतलब आई एम ऑल वुमेन. मतलब तो so I want to wish myself in fact a very happy Women's Day. So
अच्छा, ये ज्वेलरी वाली लाइन तो मैंने जानबूझ के Beautiful ऐड की है। message. ज्वेलरी वाली लाइन तो मैंने जानबूझ के ऐड की है, इतना बड़े प्लेटफॉर्म में मेरा एडवर्टीजमेंट भी हो जाता है इसके साथ साथ, तो वो एक दैट वाज एन तो यही है। so I want to wish everyone a very happy Women's Day once again. Thank you. एंड इट्स वेरी ग्रेट कि हम सारी हमारी वुमेन्स के बीच में आप आए हैं और इतना अच्छा इतनी अच्छी बातें की कि वुमेन्स से घिरी हुई आपकी जिंदगी है, वो आपका सपोर्ट सिस्टम रहा है। और हमारा मतलब वुमेन्स के लिए भी सपोर्ट सिस्टम मेल फिगर रहता है। तो थैंक यू सो मच, मजा आया सुन के। Thank you. Yes. So can I request Shivani now? Shivani, over to you. Aarti, I have a question with Shivani. Can I go ahead? Sure, Or, please. Yeah, continue. Yeah. Shivani, you always talk about comfort zones. तो आपको क्या लगता है, आपने कोई comfort, can you relate it to an example where you have come out of your comfort zones, जो आपने अपनी comfort zones को break किया और आपको अपनी life में happiness मिली? Yes. Thank you so much, Anila ji. Am I audible? Shivani, आपका camera off है. You're audible, but your camera is off. We can't see your Camera is beautiful off? face. Oh, So now we can see. Yeah. अच्छा. अब हो गया. Is it okay now? On. Yes. अच्छा, okay. Yes. Yes, definitely. Today, in this beautiful session, I would like to talk about comfort zone. कंफर्ट जोन ऐसा जोन है कि कोई किसी से उससे बाहर निकलना नहीं चाहता है। उसमें जो हो रहा है सब कुछ बहुत अच्छा है, डेली रूटीन में लाइफ बहुत अच्छी है, बट एट द एंड ऑफ द डे एक पॉइंट पे रियलाइज होता है कि कंफर्ट जोन इज वेरी मोनोटोनस। वही चीज आप एवरी डे कर रहे हो, बीइंग इन योर कंफर्ट जोन, नो डाउट यू हैव अ रिलैक्स लाइफ, brain is at peace, everything is relaxed, but the things become monotonous. So I would like to share a small story that I've been doing write-ups and I'm a blogger as well. So it has been recently started like 3 years back. I always wanted to write. I have many things to write, many things in my mind, and I always wanted to pen them down, but I did not know like how should I do that. So some of my friends gave me ideas, my husband encouraged me, my kids, my family, they gave me ideas. Yes, at least tum likho to kuch likho. And I always wanted to start my writing with my grandma thing, my grandmother things, like मेरी जो दादी हैं मैं उनके बारे में लिखना चाहती थी और उसी से मेरा राइटअप स्टार्ट करना चाहती थी। सो एक दिन ऐसा आया कि नहीं बस अब मुझे लिखना है, अब बहुत दिन हो गए हैं सोचते सोचते, दिस इज ऑल इट। अब मैं कंफर्ट जोन में बहुत दिन से हूँ, अभी बाहर आती हूँ, अब लिखना स्टार्ट करती हूँ। फिर बहुत सारे क्वेश्चन आए कि पता नहीं किसी को अच्छा लगेगा कि नहीं, मैं कैसा लिखूंगी, किसके मन में क्या थॉट्स आएंगे। देन आई ब्रोक all those things, all those myths, and I came out of my zone, and eventually I started writing, and my first write-up published, and it was like a wow. It was like I was at cloud 9. Everybody appreciated, everybody liked it so much, and my views, my thoughts for my grandma, जो मेरी feelings थी, like आज मैंने जो उसमें story बताई थी, that was आज से 20 साल पहले की story थी, and जब लोगों ने पढ़ी, everybody could relate that with their grandma. So I was elated, I was very happy, and then it continued. I wrote up 3 more write-ups, and my recent was of the COVID, and then a lot of appreciation. My family got to know, my kids got to know that mom, yeah, we did not know that you're a writer as well. My husband, he said, oh wow, you have become a writer. Everybody in the family, they started appreciating me. So I finally realized one day that it was so good, it was so great that I thought of coming out of my comfort zone, and I started my write-up thing, and the rest is history. Ajit. So this is what I want to mention about it. And वन थिंग कि अगर आप कंफर्ट जोन में हो, कंफर्ट जोन में ही अगर आपने नहीं सोचा है कि आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि मुझे बाहर आना है, आपके जो थॉट्स हैं आपको कितना पुल कर रहे हैं, यू हैव टू फिगर आउट फर्स्ट कि आपको कितना पुल कर रही है वो चीज़ कि आपको बाहर आना है। यू हैव टू लुक फॉर योर कॉल, yes, the right thing is you have to look for your call. If that is calling you like anything, so there's nothing which can stop you, and you're the only one who can create your own happiness. So this is what I did, and I'm so happy that I started my write-ups. And now people, yeah, they recognize me as a writer, and they keep asking me कि अभी बहुत दिन हो गए शिवानी, you did not write anything, क्या बात है, कुछ लिखो, कुछ अच्छा लिखो. And one more thing, मेरी कुछ friends हैं यहाँ पे,
even they used to write, they never initiated it. And जब उन्होंने देखा कि ये लिख रही है तो they started writing, और उन्होंने मेरे पास अपने write ups भेजे कि शिवानी, we always wanted to write, but this is my first write up just because I saw you writing. So they got inspired, they sent me the write up, and I was very happy, not because कि they wrote it, because कि I inspired someone to do their best. So this is what elated me like anything. Thank you so much. And आज मैं एक गाना भी गाना चाहती हूँ. हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए. हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए. बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, हाय सवार लूं. हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए. बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, हाय सवार लूं, सवार लूं, हाय सवार लूं. Thank you so much. क्या बात, क्या बात. Very sweet, Shivani. Thanks a lot. Thank you. So, Aarti, who's next? So here, I was just thinking that we had a couple of thoughts. Why not to, sing one joyous song and relate with that song collectively? If somebody has to, because we have been waiting to hear from Mr. Madhu Mukesh ji also. क्या बात. तो उनके thoughts क्या हैं? मुकेश जी. थैंक यू आरती जी. एंड आप सभी को सबसे पहले तो इस वुमेन्स डे की पर्टिकुलरली आज जो है 8 मार्च उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं. और यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमते देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, वहां देवता रमते हैं. तो मेरा सबसे पहला थॉट तो ये है कि सभी नारी का बहुत आदर होना चाहिए, वो बड़ी छोटी बच्ची हो या बुजुर्ग महिला हो. नारी शब्द जहां लग गया उसके बिना सृष्टि की रचयिता भी नहीं संभव है. सृष्टि की रचना में नारी का कितना अहम कदम है. और मैं तो कहता हूँ कि एवरी डे इज वुमेन्स डे, नॉट ओनली 8 मार्च. एवरी डे आप देखिए, सुबह से लेकर रात तक आपको कहाँ कहाँ महिला की जरूरत पड़ती है और कहाँ महिला का क्या पार्ट रहता है. अभी जस्ट मैंने कुछ पढ़ा था, मैं कुछ मिसिंग कर रहा हूँ. एक बच्चे के पिता ने उसको मम्मी के लिए उसको कमेंट किया कि आपकी मम्मी कुछ भी काम नहीं करती है दिन भर ये और वो. तो उसने मम्मी की जो सुबह से लेकर रात तक की एक्टिविटीज थी वो सब उसने कलरिंग करके और उसमें एक उसका वो बनाया, पूरा पिक्चर बनाया. और वो अभी कहीं वो गया हैगा, वो मतलब संसद तक वो चीज पहुंची है. तो वो किसी बुक का एक कवर बन रहा है कि शक्तियां क्या क्या करती है सुबह शाम तक. तो आपने को अंदाज नहीं होता है एक्चुअली उनकी शक्तियों का कि वो क्या उनका पार्ट अदा करके निकल जाती है. और हमें उनसे मतलब कि बहुत इतना संबल है जिसका सब हर कहते हैं कि हर पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है. तो ऑब्वियसली बिल्कुल ये बात कहीं मैं इनकार नहीं कर सकता. और इसी में कहीं स्मार्ट भी बनता है आदमी. अगर कहीं आपका टचिंग फीमेल से कहीं भी आता है तो आप डेफिनेटली बहुत एटीट्यूड में अपने उसमें रहते हैं, अपने सीमित दायरे में रहते हैं. आपको बोलने का इसका उसका बहुत सोच समझ के सारा, तो वो आप एक बहुत अच्छे उसमें ढल जाते हैं वातावरण में कि हमारी कहाँ कहाँ अंकुश लगना चाहिए हमारी जबान पर, वो भी हम समझते हैं उस चीज को. क्योंकि हम एक नारी के सामने खड़े हुए तो हमारे बहुत संयमता से और शब्दों का चयन करते हुए बोलना पड़ता है एक्चुअली. तो ये है. दूसरा मैं कहता हूँ कि धरती माँ है, आज गंगा माँ है, महिलाएं. और शक्ति की पूजा अगर हम करते हैं, दुर्गा के पास जाना पड़ता है, सरस्वती के पास जाना विद्या के लिए, और लक्ष्मी तो आपको पता ही है. तो सभी जगह नारी का जो है उसके बगैर किसी का भी काम नहीं चल सकता. ये तो पूरे वर्ल्ड के लिए चीजें हैं. तो ना तो किसी का बुद्धि के बगैर काम चल सकता है, ना लक्ष्मी के बगैर काम चल सकता है. तो मैं तो ये कहूंगा कि एवरी डे इज वुमेन्स डे. तो बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा. वो वुमन है, उसका कोई मुकाबला नहीं. और मैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत लेके आया हूँ मुकेश जी का और लता जी का कॉम्बिनेशन में. इरशाद.
क्योंकि नारी ही हमसफर होती है और हर जगह। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का साज हो, साज की आवाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का गीत हो, गीत का अंदाज हम सफर मेरे हम सफर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Mukesh ji. Your singing was so inspiring, so melodious as usual. Thank you. Thank you for being part of us. Thank you, Mukesh ji. अब ये समय है हम रेणु जी से बात करें, जो एपिटोमाइज करती हैं सिंप्लिसिटी को, और अपनी सिंप्लिसिटी में उन्होंने एक पैशन ढूंढ के अपनी जिंदगी को कैसे चेंज किया, हम ये जानना चाहेंगे और चाहेंगे कि सब लोग उनसे उत्साहित हों। रेणु जी, प्लीज, ओवर टू यू। थैंक यू आरती जी, और थैंक यू मुझे बोलने देने के लिए। सबसे पहले तो मैं सबको वुमेन्स डे की शुभकामनाएं दूंगी। सारी वुमेन्स हमारे वरांडा की बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आप दोनों ने बहुत अच्छा ले जा रही हैं शो को। और वुमेन्स के साथ साथ हमारे जो वरांडा में, जैसे अनिला जी ने कहा है कि मेंस भी बहुत ऑसम है, हम उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। और जैसा कि आपने बोला है कि मैंने अपना पैशन, मैं अपने पैशन के लिए जब बताऊंगी, सबसे पहले तो अपने इनर पावर को पहचानने चाहिए, है ना, हमारा इनर पावर और हमारा पैशन। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं उससे कैसे आगे बढ़ी हूँ। सबसे पहले मैं जब छोटी थी, मैं उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। मुझे गाने का जो शौक हुआ है वो मेरे पापा से हुआ है। मेरे पापा मम्मी दोनों को शौक था, और फिर मेरे पापा डिप्रेशन में चले गए थे। तो वो डिप्रेशन में से निकालने के लिए हमने गाने के बहुत साथ दिया। सारे दोस्त मिलके गाना गाते थे, म्यूजिक होता था, वो सब चलता था। और वही सब गाते गाते वो इतना जहन में बैठ गया गाना और वो शौक, वो सारी चीजें। लेकिन वही होता है, जब हम आगे बढ़ते हैं जिंदगी में तो हम अपनी जिम्मेदारियों के तहत इतने वो हो जाते हैं, वो हमारा पैशन कहीं अंदर छुप जाता है, जो शौक है। लेकिन वो अंदर तो रहता ही है, जहन में कहीं रहता है। वही आगे जब गई तो वो शौक मेरे हस्बैंड को भी था। हमने जब बच्चे थे छोटे छोटे तो गाते थे, गुनगुनाते थे। लेकिन वो एक जब भागदौड़ शुरू हो जाती है, वही हम जब भागदौड़ में हम खो जाते हैं, हम अपने आप को खो देते हैं। तो और वही हम शायद थोड़ा गलती करते हैं कि हमको अपने पैशन की तब भी सुननी चाहिए, थोड़ी भागदौड़ के साथ साथ हमको अपने शौक भी जिंदा रखने चाहिए। और जब मैं फिर एक सेटबैक हुआ मेरे लाइफ में, मेरी सिस्टर को मैं खोने का डर था, और तब म्यूजिक वरांडा फिर मेरी जिंदगी में आया। और जब मैं उससे जुड़ी तब मैं बहुत डिप्रेशन में थी। लेकिन वही मुझे वो ये जो रोज का जैमिंग सेशन होता था, गाने होते थे, बातें होती थी, तो वो मेरे जो अंदर की शौक था, मेरा जो इनर पावर था जिसको मैं बोलूंगी, वो वापस मैंने उसको छुआ, वो वापस मेरा बाहर आया। और मैंने जब ये सब शुरू किया, गाने शुरू किए, आप सब लोगों से मिलना, बात करना। और म्यूजिक वरांडा में सिर्फ गाने ही नहीं होते, वहाँ पे टॉक शोज भी होते हैं, हमारे साथ बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आते हैं। हमने उनसे बातें की, हम उनसे इंस्पायर हुए, और वो सारी चीजें मुझे मेरी पर्सनालिटी को बहुत निखारा। मतलब मेरे अंदर की जो चीजें थी, मैं जो छुपा दी थी, मुझे लगा कि वो सब बाहर आ रही है। और मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ किया। उसके बाद मैंने गाने शुरू किए, और टॉक शोज जो होते थे, ये बोलना सब आप लोगों ने सिखा दिया, काफी कुछ सीखा। तो मेरा यही मैसेज है कि अपना इनर पावर को भी पहचानिए, अपने पैशन को भी जिंदा रखिए। जब जब मौका मिले, जहाँ मौका मिले, जैसे ही मुझे मौका मिला, म्यूजिक वरांडा मिला, मैंने वो मौके को नहीं छोड़ा। मुझे शौक था फोटोग्राफी का। मेरे जब बच्चे छोटे थे तो मैं बहुत फोटोज क्लिक करती थी। फिर जब बच्चे बड़े हो गए, वो सब जिंदगी भागदौड़ में वो सब खत्म हो गया।
फिर म्यूजिक वरांडा मिला और आप लोगों के फोटोज क्लिक कर करके मैं जो आप लोगों ने मुझे जो एक उपाधि दी है, तो बहुत मजा आता है उसको सुन के। जब जब भी मुझे बोला जाता है टेक्नीशियन और फोटोग्राफर और जो भी बोलते हैं, बहुत मतलब ये इस वापस वही चीजें मुझे सुनने मिल रही। जब मैं जॉब करती थी, जब मैं छोटी थी, तो मुझे ये सारी चीजें सुनने को मिलती थी, क्योंकि मेरे पापा ने शुरू से इंडिपेंडेंट सिखाया, बनाया, और वो सब मिल रहा है। तो मतलब म्यूजिक वरांडा से मैं आके और जो अपने शौक को जो मैंने वापस जिंदा कर दिया, इसलिए अपने शौक को सुनिए, खुश रहिए। म्यूजिक, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और मैं सारी औरतों से, सारी लड़कियों से यही बोलती हूँ कि अपना आप सबसे पहले अपने आप को खुश रखिए, अपने अंदर के शौक को जिंदा रखिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करिए, लेकिन अपने शौक को मत खत्म करिए। जब जब मौका मिले, जहाँ मौका मिले, सड़क पे, बाथरूम में गाना गाइए, यदि गाने का शौक है तो। क्योंकि मुझे गाने का शौक है, इसलिए मैं गाने की बात करती हूँ। बोलने का शौक पहले कम था, अब ज्यादा हो गया है और मजा आ रहा है। तो थैंक यू सो मच। शायद मैं ज्यादा बोल गई, लेकिन खुश रहिए, मस्त रहिए और भागिए। जिंदगी में भागने के साथ साथ सुनिए दिल की, सुनिए दिल में कुछ झंझना रहा है, उसको सुनिए और गाइए। थैंक यू सो मच। रेणु जी, रेणु is बहुत so बहुत धन्यवाद, बहुत ही inspirational. इंस्पायरिंग था। Yes. और आपकी बात सुन के मुझे बस एक शेर याद आता है कि अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। अब वही है कि अगर हम सिंप्लिसिटी अलाइव रखें, पैशन अलाइव रखें, जिंदगी बहुत सुंदर हो जाएगी। थैंक यू रेणु जी, अप्रिशिएट इट सो मच। एक दो लाइन गाना चाहूंगी आप सबके लिए। प्लीज प्लीज। पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमन में। हिल्लोरी हिल्लोरी हिलो हिलो हिल्लोरी हिल्लोरी। थैंक यू। थैंक यू रेणु जी, थैंक यू सो मच। अब मैं सादर निमंत्रण देना चाहती हूँ शांतना जी को, अगर वो हमसे कुछ शेयर करना चाहती हैं, गाना गाना चाहती हैं। शांतना जी। Shantana, Yes. she's a home chef and she is like, she's full of life, full of happiness, and full of so many qualities. Like, she's beautiful, she's a wonderful cook, she's so love, and she sings so well, she dances so well, she's a great friend. मतलब इसके बारे में जो कहूँ कम है. So over to Shantana. कैसे आपने, how did you evolve yourself from that role? A very good evening and happy Women's Day to all of you. Thank you for those kind words, Anila. You just made my day. Veranda का इसमें बहुत बड़ा हाथ है. I must tell you, Veranda has evolved into everything. Yes, I am a good cook now. I can say it bluntly because everybody has tasted my food and they just love it. I just put love into it. Yes, I am full of love. I'm beautiful. Uska credit goes to God and to my parents, not me actually. And what could I say? Life is beautiful. For me, life is beautiful. Yes. Every day, I just enjoy miracles happening. Yes. Am I audible? Yes, you're audible. Go ahead, Shantana. Keep saying. We are listening to you. बस मैं जानना चाह रही थी कि you transformed. एक time था जब आप there were challenges and then how did you change it all? So थोड़ा सा वो share करोगी तो हम लोग को और inspiration मिलेगा. Yes. I changed to say. It's all within us. We women can do anything. It really changed me and helped me, my strength, my honesty, to become the fearless. I have evolved as a beautiful person. I love helping. I love caring. That's me. Shantana is full of love. She's full of happiness. I just give it and it comes back to me. The universe is returning what I have given.
and my children are very happy with me. Everything is good. Life has become good. That's it. Or the song which I'm going to sing actually represents me as Shantanu. Here it goes. I think there's some internet issue, I think. There's an internet issue. Yeah. आज मैं आगे जमाना है पीछे, टेल मी ओ खुदा ला 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 ला, अब मैं क्या करूं ला 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 ला, चलूं सीधी के उल्टी चलूं, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, आज मैं ऊपर. Thank you. Thank you. That's wonderful. Thank you, Shantanu. And Anila ji, I think, yeah, now we have to invite Kavita Mausi ji. हाँ, उसके पहले हम रूबी जी से भी एक गाना सुनते हैं, फिर कविता मौसी को इनवाइट करेंगे, and then Manisha is also joining you. Yes, so we'll Manisha also like to तो पहले हम रूबी जी, हेलो रूबी जी. हेलो अनिला जी, कैसे आप? बहुत अच्छी हूँ. सबको वुमेन्स डे का बहुत बहुत बधाई. इतना अच्छा लगा, शुरू से मैंने सुना, ज्योति जी, आरती, इतने अच्छे अच्छे बातें, सर मेरे मन के बातें कह दिया. सारी डिस्कशन बहुत अच्छा था. मैं खाली कहूंगी कि लेडीज, हम जो वुमेन है, हमारे अंदर में जो शक्ति, जो इनर पावर, उस पावर को हमेशा बरकरार रखना. अपने लिए जो बताए थे ना, टाइम निकालना, मैं भी अपने साथ डेली 2 घंटा 3 घंटा देती हूँ. मैं सबको कहना चाहूंगी कि सब अपने लिए एटलीस्ट 1 आवर रखिए, क्योंकि हम सारे घर के सब मेंबर के कुछ ना कुछ करते करते अपना केयर रखना भूल जाते हैं. ये कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर खुशी हो तो सारे घर में लाइट, मतलब, तो बस यही हमारा है कि सब अपने ऊपर टेक केयर कीजिए, ध्यान रखिए, और अपना हॉबी को जानने का कोशिश कीजिए. ये सबसे बड़ी बात है. अपना अगर हॉबी को आपको पता चल गया तो उसको लेके आप जी सकते हैं, मतलब खुश रहेंगे और कुछ भी करने का इनर आपको मिलेगा. रूबी जी, आपका गाना आज अच्छा सा गाना सुना दीजिए. तो आपकी आवाज इतनी सुंदर है. रूबी जी इज अ योगा टीचर, शी इज अ मेडिटेशन गुरु, बहुत फिनोमिनल है. ट्राई कर रही हूँ. हाँ. आज कल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, आज कल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए, आज कल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे.
हाथ तो देखा है, लोग कहते हैं कि बस हाथ की रेखा है। हमने देखा है दो तकदीर को जोड़ते हुए, आज कल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे। बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए, आज कल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रुबी जी। इट वॉज रियली ऑसम लिसनिंग टू यू एज यूजुअल, वेरी इंस्पायरिंग। एक छोटा सा मैसेज जरूर देना चाहेंगी आप हमेशा इंस्पायर करती हैं। एक छोटा सा सिनॉप्सिस। वही कहा ना कि हम मतलब हमारे अंदर जो है ना पावर, इनर पावर, उसको हमेशा देखना है। हम सब कुछ बाहर ढूंढते हैं, बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए अपने साथ में बैठिए, आपसे बातें, अपने आप से बातें कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उसमें आपको बहुत विजडम मिलेगा। उस विजडम को लेके आप चलिए, बहुत आगे बढ़ सकते हैं आप फिर। थैंक यू। Point very well noted, ma'am. Thank you so much. Now I humbly and very respectfully invite कविता मौसी। कविता मौसी आप आए और हमें इंस्पायर करें। थैंक यू शिवानी, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं यहाँ लेट आई हूँ तो एक मैं छोटा सा आज जहाँ मैं गई हूँ उसके बारे में आपको बताऊंगी कि हाँ हम लोग हमारा ग्रुप एक जहाँ लड़कियां गर्ल्स हॉस्टल है, उस गर्ल्स हॉस्टल में हम उनको कुछ सामान देने गई थी। जो मजदूरी करते हैं, जिनके पेरेंट्स, उनकी लड़कियां को वहां रखा जाता है और उन्हें पढ़ाया जाता है। जब हम लोग वहां गए तो जो उसकी ऑर्गेनाइजर है वो हमें सब कुछ बता रही थी कि ये बच्चों का रूम है, ये किचन है, ये ऐसा है। तो वो जो रूम हमने देखा, उन लड़कियों के एक रूम में 10-12 पलंग लगे हुए थे, उनका सामान था। तो उनकी बुक्स ऐसे जमी थी जैसे बिल्कुल एक धागे से बांध के हम बुक्स रखते ना, बिल्कुल ऐसे जमी। उनके शूज, उनके सोप, उनका शैम्पू सब उनके पलंग के नीचे इतनी करीने से इतने अच्छी तरह जमा था। उनका किचन इतना साफ था, उनका गार्डन इतना अच्छा था। हमने जब उनके बारे में पूछा तो वो बोली कि हम बच्चों को सिखाते हैं सुबह उठ के अपनी सफाई कैसे करनी है, बाथरूम कैसे साफ करनी है, बगीचा करना है, किचन को कैसे करना है। और जिसको जिसमें इंटरेस्ट है हम उसको वो चीज देते हैं। यदि किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, किसी को गार्डनिंग में इंटरेस्ट है, हम उन गरीब लड़कियों की इस तरह की परवरिश करते हैं। जो वो महिला जो हमें बता रही थी, जो ऑर्गेनाइजर है वहां पे, जो देखरेख करती है, वो महिला हमें इतनी अच्छी तरह से कि हम सोचे हमने अपने बच्चों को भी इतनी अच्छी परवरिश नहीं दी होगी जितनी अच्छी महिला ये 40 लड़कियों को दे रही है। एक महिला उन 40 लड़कियों को इतनी अच्छी तरह से गाइड कर रही है। तो जब हम सब पूरा उनको सामान दिया, हमने उनकी जरूरत का जो भी सामान था हमने वो दिया। तो उसके बाद जब हम लोग बैठे तो मैंने खड़े होके आज बोला, मैंने यही बोला कि आज बहुत बड़ी बड़ी महिलाओं का सम्मान हो रहा होगा, कोई डॉक्टर का, कोई समाज सेविका का, कई महिलाओं का सम्मान हो रहा होगा। मैंने कहा आज सम्मान तो आप हैं आज सम्मान के लायक। और मैंने वहां पे जो भी सम्मान की, हमारे पास जो चीजें थी, मैंने उस महिला को सम्मान किया। वो महिला इतनी गदगद हो गई कि पहली बार, मैं इतने सालों से यहाँ जॉब कर रही हूँ, मुझे पहली बार ये ऑनर आपने दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो जो गरीब बच्चों को देख रही है उसके लिए वो सम्मान लायक थी। तो मुझे आज इतनी खुशी है। मैं थोड़ी लेट इसीलिए हुई कि मेरा दिल ऐसा लग रहा है आज मैंने महिला दिवस बनाया है। तो ये मैं शेयर करना चाहती हूँ। और मैंने कुछ लिखा है वो मैं बताती हूँ कि महिला दिवस जरूर मन से करती सारे काम, हिम्मत उसका दूसरा नाम, लाए खुशियां सुबह शाम, दिया वरदान, संसार में रहे हमेशा उसका मान। ये है महिला दिवस। तो और हर दिन हो, जैसे मधु मुखर्जी ने बोला कि हर दिन महिला दिवस है, हर दिन होना चाहिए नारी के नाम, क्योंकि बिना रुके करती वह सब काम।
तो हर दिन महिला के लिए है। महिलाओं के लिए ये, जैसे सभी ने बोला तलाशो, तो यही है कि खुद में तलाशोगे तो पूरी दुनिया है, खुद में तलाशोगे तो पूरी दुनिया है, दुनिया में तलाशोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, दुनिया में तलाशोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो अभी सभी लोग बोल रहे हैं कि हमें अपने आप को तलाशना है, अपनी महिला को निकालना है, अपनी औरत को जगाना है, तो ये बहुत जरूरी है। और महिला प्रकृति से जुड़ी महिला है, नारी का जो रूप भगवान ने दिया है वो प्रकृति से जुड़ा है। तो मैं इसके बारे में 2 लाइन लिखी है मैंने अभी कुछ देर पहले ही। नारी प्रकृति का दूसरा रूप है, नारी प्रकृति का दूसरा रूप है। नारी को दे फूलों की उपमा, नारी को दे फूलों की उपमा, जैसे सुबह सवेरे खिलता फूल, लिए संग खुशबू भरपूर, खिलता मन हम सबका खूब। जब हम उसको देखते हैं तो हमारा मन बहुत खिलता है, इसलिए वो नारी का रूप है, फूल ही एक नारी का रूप है। नारी को दे सूरज की उपमा, नारी को दे सूरज की उपमा, जैसे नियमित करता काम सबको दे एक सा व्यवहार, सबको देता एक सा व्यवहार, देकर अपना तेज प्रकाश। वैसे ही नारी है, सबको एक जैसा प्रेम देती है। नारी को दे चंदा की उपमा, नारी को दे चंदा की उपमा, है जिसका सुंदर रूप, करता सबका शीतल मन, अंधेरे में भी है उसकी शान, अंधेरे में भी है उसकी शान। तो नारी की शान हर वक्त रहती है, वो अंधेरे को उजाले में परिवर्तित करने की सबसे खास शक्ति उसमें होती है। नारी को दे जल की उपमा, नारी को दे जल की उपमा, शीतल स्वच्छ सरल है उसका रूप, जिसमें ढालो वैसा रूप, जिसमें ढालो वैसा रूप। ये तो हम देखते आए, नारी पति पत्नी बेटी बहू सब रूप में ढल जाती है। नारी को दे अग्नि का रूप, नारी को दे अग्नि का रूप, देकर तेज करती निर्माण, देकर तेज करती निर्माण। वो जैसे अग्नि अपना खाना पकाती है, वैसे ही नारी अपना तेज देके सबका निर्माण करती है। नारी को दे अग्नि का रूप, देकर तेज करती निर्माण, नहीं मिला जब उसको मान, नहीं मिलता जब उसको मान, तो करती ताप से भस्म अहंकार, तो करती ताप से भस्म अहंकार। जी हाँ, नारी एक शक्ति है, नारी दुर्गा है, तो वो भस्म भी कर सकती है। ये है नारी उसकी असली पहचान, ये है नारी की असली पहचान। तो आज मैं महिला दिवस पे नारी का ये प्रकृति से रिलेट रूप ही नारी है, ये मैं कहना चाहूँगी। Thank you. Very Thank you. inspiring. Very Yes. inspiring, ma'am. Thank you Much very much. inspiring. And Arti, can we? Manisha has been waiting for a long time, Please, so please, we'll yeah. request Manisha. Go ahead, Manisha. Yes, and Manisha, I'll just introduce her. Manisha, she's a wellness expert, and she logs in from Germany. Amazing mother and a beautiful singer. Thank you. And thank you. Over to you, Manisha, for your inspiring words or song or whatever. Thank you so much, Anila ji. And first of all, happy Women's Day to all of you, all the beautiful girls. I can say girls. We are women, we are girls, we are mothers, we are everything. तो मुझे मैसेज ये देना है कि मतलब सबको मैंने सुना और बहुत इंस्पायर हुई मैं भी, और मुझे लगता है कि एक ही बात ध्यान रखनी है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहिए हमें। सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। तो मुझे लगता है सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीसफुल रहना इंपॉर्टेंट, हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट। तो वो अपने लिए आप खुद ही कर सकते हो, तो आप वो प्रैक्टिस कीजिए। और एज अ वेलनेस एक्सपर्ट मैं यही कहना चाहूंगी कि हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी वुमेन्स अपने हेल्थ को इग्नोर करती है, तो वो प्लीज मत कीजिए, जस्ट बी हेल्दी। तो ये गाना मैं भी जो गा रही हूँ मुझे बहुत पसंद है। Irshad. Okay, here we go. Audible हूँ मैं? Hello? Yes. Is it okay? Yes, fine, good. जो दिल से लगे उसके लो हाय 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 हाय,
जो दिल ना लगे उसके दो बाय 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 आने दो दिल में आ जाने दो के दो मुस्कुराहट को हाय 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 लव यू जिंदगी लव यू जिंदगी लव यू जिंदगी लव यू जिंदगी कभी हाथ पकड़ के तू मेरा चल दे कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल दूं मैं थोड़ी सी मोड़ी हूँ तू थोड़ी सी टेढ़ी है क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी आने दो दिल में आ जाने दो के दो मुस्कुराहट को हाय 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 जाने दो दिल से चल जाने दो के दो घबराहट को बाय 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 लव यू जिंदगी लव यू जिंदगी लव मी जिंदगी लव मी जिंदगी थैंक यू Thank you, Manisha. That was really motivating, inspiring. अच्छा लग And रहा I है think we उसको all बाय have बोलो, special और जो motivation. नहीं अच्छा लग रहा है उसको बस बाय बोलो. That's it. Yes, Thank yes, very true. Embrace what comes your way in a positive way and just check out the irrelevant, check out the waste, check on the thoughts. Yeah. Very true. Thank you, Manisha. Thank you so Thank you much. so much. Thank you so much. I'm really grateful for this evening. If somebody wants to sing along, please welcome, or else I think we can wind up for the session today with a positive note and great heartfelt gratitude to everyone, whosoever has participated. Is there someone who would like to sing? कोई हमारे बीच में गाना चाहेगा? Okay, sure. So I think I'll just sing one song, okay? And I hope you enjoy this, and then we can just wind up the session. एक कुड़ी जिदाना मोहब्बत गुम है गुम है गुम है एक कुड़ी जिदाना मोहब्बत गुम है गुम है गुम है सादी मुरादी सोनी परियां वर्गी सीरत दियो मरियम लग दी हंसती है ता फूल चढ़ देने तुर दी है ता गजल है लग दी I think आरती का कनेक्शन ड्रॉप हो गया है. So there are few more people. यदि कोई और बोलना चाहें. Okay, सुमन मौसी, आशा मौसी, सबका कैमरा ऑफ है. Yes, so I think Shivani, we can wrap up this beautiful evening. The evening can come to a close, but not the determination, the passion, and the inspiration that we have created. है ना शिवानी? Definitely, yes. हाँ, तो
ओवर टू यू शिवानी। और एक थैंक यू प्रेमलता आंटी को ज्वाइन करने के लिए, और बहुत सुंदर। प्रेमलता आंटी, कोई एक छोटा सा मैसेज कोई बोलना चाहे तो आप बोल सकती हैं। कोई छोटा मैसेज है आपका आज के लिए? थैंक यू अनिला, बहुत अच्छा लगा, प्रोग्राम बहुत अच्छा था और सबके विचार सुन के बहुत अच्छा लगा। और अच्छा है हम लोग एक दूसरे की बातों से इंस्पायर होएं और अपने आप को प्रधानता दें, अपने आप का स्वास्थ्य का ध्यान रखें और साथ में सबके लिए दुआएं करें। सब खूब खुश रहें, खूब खुश रहें, जिंदगी को एंजॉय करें और खूब आनंद लें जिंदगी का। जैसा कि मधु मुकेश साहब ने बताया कि हर दिन ये धारणा अपन मन में रखेंगे तो अपने को आगे बहुत अच्छा जीवन बिताने के लिए सबब मिलेगा। सबको महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज बहुत से लोगों से परिचय हुआ, मैं तो पहली बार आई हूँ, मुझे सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद। Over to you, Shivani. Thank you so much, Premlata ji. And Anila ji, the thing is, woman, for W stands for a wonderful wife, O is for an outstanding friend, M is for marvelous daughter, E is for adorable sister, and N is for a nurturing mother. Every home, every heart, every emotion, every moment of joy is incomplete without you. So on this note, I would like to wish each and every woman a very happy Women's Day. The lovely ladies present in our veranda, a very happy Women's Day. Keep inspiring us and keep getting inspired by others. And this is how the world goes. And, this is Shivani from Music Veranda signing off. Thank you so much and bye-bye. Thank you.